Now discuss about the few definitions और एक एक नंबर में definitions भी आ जाती है कई बार। एक रिलेशन भी डिस्कस करेंगे जो 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो 2 से लेके 3 नंबर में आ जाती है। तो फिलहाल हम लोग लेके चल रहे हैं डेफिनेशंस। तो फर्स्ट मैटिक परमेबिलिटी। मैटिक permeability may be defined as amount of magnetic lines of forces passing through by the medium or in a material, that is known as magnetic permeability, represented by mu. Permeability means it permits some amount, it permits magnetic lines of forces, so it is known as magnetic permeability, that is mu. एक होती है relative magnetic permeability, mu r. It is defined as the ratio of magnetic permeability for a given medium to the magnetic permeability of free space. Mu upon mu naught. It is the ratio of magnetic permeability of a given medium to the magnetic permeability of free space. Okay. Now magnetic flux density or magnetic field induction और सिंपली मैग्नेटिक फील्ड, तीनों एक ही चीज है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये सब एक ही बात है। पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, फिर से सुनो आप इसको। F इक्वल्स टू क्यू बी बी साइन थीटा, B equals to F upon QV sin theta. If Q equals to 1 coulomb, V equals to 1 meter per second, theta equals to 90, B equals to F. If charge of 1 coulomb moves with velocity of 1 meter per second perpendicular to the direction of magnetic field, then the magnetic field is equals to force experienced by the charged particle. This is when a charge of 1 coulomb moves with velocity of 1 meter per second perpendicular to the direction of magnetic field, then magnetic field is equals to force experienced by the charged particle. तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन है। अब लेके चले हम लोग मैग्नेटाइजिंग फोर्स, एंड इट इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय H। इसकी डेफिनेशन जानो। अप टू व्हाट डिग्री मैग्नेटिक फील्ड can magnetize the material when placed inside the magnetic field. Up to what degree magnetic field can magnetize the material when placed inside the magnetic field, known as magnetizing force or magnetic field intensity, represented by H। और इस सोलेनॉइड के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हुआ करती है, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोलेनॉइड। एज यू नो दैट B इक्वल्स टू mu naught Ni और mu Ni डिपेंड्स ऑन द मीडियम। हियर B इक्वल्स टू mu naught H, so here H equals to Ni, number of turns per unit length and current। तो यूनिट क्या बनेगी इसकी? एम्पियर पर मीटर। इस फॉर्मूले से इसको मेजर करेंगे। आप चाहो तो इसको Ni लिख सकते हो, कैपिटल I को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए Ni लिख सकते हो। एम्पियर पर मीटर इज द यूनिट। ये फील्ड की प्रॉपर्टी हुआ करती है। ये फील्ड किसी मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकता है, दैट इज नोन एज
मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फील्ड, कि वो कितना मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकता है, दैट इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फोर्स। नाउ और अब लेके चल रहे हैं हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, up to what extent material magnetize when placed inside the magnetic field. Up to what extent material magnetize when placed inside the magnetic field known as intensity of magnetization. ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, कितना हो रहा है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। फील्ड उसको कितना मैग्नेटाइज कर सकता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। वो फील्ड की प्रॉपर्टी है और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई, एंड वी कैन मेजर इट। कि ये कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट हुआ है। वी कैन मेजर इट, आई इक्वल्स टू m upon v, represented by I, and it is m upon v, the ratio of what is capital M? Magnetic dipole moment divided by volume. So we can measure it by the ratio of dipole moment upon volume, or force strength upon area. Units again ampere per meter. Unit again ampere per meter. क्लियर? तो ये फील्ड की प्रॉपर, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है और ये फील्ड की प्रॉपर्टी है। और अब लेके चल रहे हैं हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, magnetic susceptibility is the property of the material, with how quickly it magnetizes when placed inside the magnetic field. ये एक प्रॉपर्टी होती है वो कितनी जल्दी और कितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है फील्ड में रखने के बाद, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये एक प्रॉपर्टी हुआ करती है, एंड वी कैन मेजर इट बाय रेशियो ऑफ आई ओवर एच। We can measure it by this formula. It is the ratio of intensity of magnetization to magnetizing force, I over H. Okay? We can measure it by the ratio of intensity of magnetization to magnetic field intensity. Dimensionless quantity, no units. इसकी यूनिट नहीं हुआ करती। और अब रिलेशन लेके चल रहे हैं हम लोग म्यू आर एंड ससेप्टिबिलिटी के बीच में, इनके दोनों के बीच में रिलेशन लेके चल रहे हैं। ओके, देखो रिलेशन। रिलेशन इन बिटवीन म्यू आर एंड ससेप्टिबिलिटी। ओके, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मटेरियल है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया, इट इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर कोई मटेरियल रख दिया गया, मैग्नेटिक मटेरियल है, रख दिया गया, तो मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, अलाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अलाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगी, जब वो अलाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो मैग्नेटाइज हो गया, तो अपना ही फील्ड बनाएगा। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अप्लाइड प्लस इंड्यूस के बराबर होगा। भाई अप्लाइड तो है ही, और जो मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया है उसका भी तो फील्ड आएगा। जो टोटल फील्ड बनेगा B, इट इज इक्वल्स टू BI प्लस BH।
ठीक, अप्लाइड प्लस इंड्यूस, सो जो टोटल फील्ड बनेगा दैट इज ओके। और अब एक रिलेशन लेके चलते हैं, तो हमें रिलेशन निकालना है म्यू आर एंड ससेप्टेबिलिटी के बीच। बी गोज टू म्यू एच हो गया, बी आई म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एच, म्यू एच इक्वल्स टू म्यू नॉट आई को चेंज कर देते हैं, आई को चेंज कर देते हैं। आपको पता है रिलेशन होता है आई ओवर एच, यहाँ क्या आ जाएगा एच प्लस म्यू नॉट एच, आई की जगह में ये लगा, सो म्यू एच इक्वल्स टू म्यू नॉट एच कॉमन हो गया, 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी, और म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी, दैट इज म्यू आर, relative magnetic permeability, 1 plus susceptibility. So mu r equals to 1 plus susceptibility, ये एक रिलेशन आ गया, क्लियर। और ये 2 मार्क्स में रिलेशन बोर्ड में आ चुका है, mu r equals to 1 plus susceptibility। और अब न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, कुछ डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थी, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी था, और एक रिलेशन भी। और अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, तो रिलेशन देखो इसके ऊपर लेके चलेंगे, रिलेशन के ऊपर अभी आया है, अ सोलेनॉइड of 500 turns per meter is carrying a current of 3 ampere. Its core is made of iron which has a relative permeability of 5000. Determine the magnetization, determine the magnitudes of magnetic intensity, intensity of magnetization and magnetic field inside the core. फिर से सुने स्टेटमेंट, a solenoid of 500 tons per meter, तो small n given है, small n is given, that is 500, it's 500, carrying a current of 3 amperes, I is given 3 amperes, its core is made of iron which has a relative permeability of 5000, mu are given है, it's 5000. Determine the magnitudes of magnetic intensity and second one intensity of magnetization and the third one is magnetic field inside the core. ठीक, तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक H निकालना है, magnetic field intensity, second intensity of magnetization, third magnetic field inside the core, ये 3 चीजें निकालनी है। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको पता है H इक्वल्स टू Ni होता है, अभी हम लोगों ने डिफाइन किया था, H इक्वल्स टू Ni, सो H इक्वल्स टू N कितना है 500, I 3 एम्पियर
पर मीटर। पहला पार्ट आ गया। एन दिया हुआ था, आई गिवन था, फॉर्मूला आपको पता है H इक्वल्स टू NI और दैट इज 1500 एम्पियर पर मीटर। नाउ और अब लेके चल रहे हैं हम लोग सेकेंड पार्ट। आई निकालते हैं, म्यू आर गिवन है और म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, एक फॉर्मूला आपने अभी ड्राइव किया था। तो ससेप्टिबिलिटी मिलेगा 5000 माइनस 1 4999 4999, ओके, ऑलमोस्ट 5000 ये ससेप्टिबिलिटी है और हमें निकालना है आई। एक रिलेशन आपको पता है आई ओवर एच, तो आई जब निकालना है ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, आई इक्वल्स टू 4999, एच निकाल चुके हैं हम लोग 1500। अगर आप 5000 लेके चलो तब भी लगभग वही आंसर बनेगा। सॉल्व करने में मिल रहा है 7.5 10 to power 6 एम्पियर पर मीटर। ये सेकंड पार्ट आ गया। ये 3 मार्क्स से आया हुआ न्यूमेरिकल है, बोर्ड में 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। और अब तीसरा पार्ट बी निकालना है और वो भी इनसाइड द कोर। इनसाइड द कोर मींस बी इक्वल्स टू म्यू एच निकालना है, नॉट म्यू नॉट एच, म्यू एच इनसाइड द कोर। मीडियम आ गया है, सो बी इक्वल्स म्यू नॉट म्यू आर एच 4 पाई 10⁻⁷ और म्यू आर की वैल्यू आपको पता ही है, दैट इज 5000 और एच भी आपको पता है, निकाल लिया आप लोगों ने 1500। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 9.4 टेस्ला। तो ये न्यूमेरिकल 3 मार्क्स में आया हुआ है बोर्ड में, ठीक है। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे कि हमें एच क्या है, आई क्या है, ये सब चीज़ें पता होंगी और म्यू आर का रिलेशन क्या है। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी तो आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल था, समझ गए हो गया। सबसे पहले हमने एच निकाला। एच क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स, एच इक्वल्स टू एन आई। ठीक, पहला पार्ट आ गया और यूनिट आपको पता है एम्पियर पर मीटर होती है। सेकंड हमें क्या कैलकुलेट करना था? आई, कैपिटल आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इसके लिए एक फॉर्मूला पता है आपको, आई ओवर एच इक्वल्स टू ससेप्टिबिलिटी। तो पहले मैं ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि म्यू आर गिवन है और आपको पता है कि म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी होती है। तो 1 कम हो जाएगा इसमें से, ऑलमोस्ट 5000 ही रहेगा। और फिर हमने ये रिलेशन निकाल दी, लगा दिया, आई इक्वल्स टू ससेप्टिबिलिटी इनटू एच मींस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सॉल्व किया तो बना 7.5 10 to power 6, 5000 लेके चलेंगे तब भी यही आंसर आना था, एम्पियर पर मीटर। ये 2 पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर। जब इनसाइड द कोर आप निकाल रहे हो तो फिर हमें मीडियम यूज करना पड़ेगा, इसीलिए म्यू एच आया। और म्यू आपको पता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है और म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, स्टार्टिंग में इसका यूनिट में, इसी यूनिट में स्टार्टिंग में 4 पाई 10⁻⁷
mu r 500, mu r 5000, mu r is 5000 and h is 1500 और मिलेगा आपको 9.4 टेस्ला। ये 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल था और इस तरह क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ओके।